This time we are coming up with another very different project in which we have used very different color palettes. और जो हमारा main color tone है that is in beiges, and we have used different colors with the beige combination. जो हमारा main dominant color है इसमें that is olive green, which we have used in different rooms. नेटिव ने हमेशा जब भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसमें उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लेके आए और इसी तरह ये वाला प्रोजेक्ट भी इसमें जो फर्नीचर डिज़ाइंस हैं इंटायरली चेंज हैं. We take over this house after grey structure, and after that we planned all the feature walls, the color palettes and the chandeliers, lights, everything according to the design and theme. And basically this house is designed on the sleek lines, and we designed the furniture on that style. In drawing room, you can see we have used all the neutral tones, all the beige tones, like we have put not the calligraphy but the khatati painting on the wall, which is in the round shape. I think that is different from the other paintings. Normally we use the paintings in like squares and rectangulars, but in that room we have used a round painting, and we have put some colors like little bit touch of rust in the cushions, but on the whole we have used all the neutral color tones in the drawing room. In dining, you can see I have used beiges with the rustish brown color, and we have used a very different furniture in that. Especially we have done a very different treatment on the dining top, and as usual we have added like a huge wall art in that, which is in black and white color, that is complementing the whole room theme. And the speciality about that crockery is totally handmade, especially the glasses, the plates, all are handmade, and which is in olive green color. And I just love that color. That's why I added so much in this house, especially in the dining room, which is popping out. इंटीरियर जो है बेसिकली ये इसकी 3 बेसिक चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. नंबर 1 तो ये है कि कलर कॉम्बिनेशंस उसके मतलब वो टॉप लाइन कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, जो ट्रेंड चल रहे हों उसके अकॉर्डिंगली होने चाहिए. नंबर 2 वेल डिज़ाइन फर्नीचर होना चाहिए उसको. नंबर 3 जो है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है प्लेसमेंट. मतलब इन 3 चीज़ों के साथ एक अच्छा इंटीरियर, एक अच्छा गेटअप आता है, एक अच्छे घर की लुक आती है. तो मेरा ख़्याल है इनके बगैर आप इंटीरियर कंप्लीट नहीं कर सकते.
In TV lounge, I have added my very signature chandelier, which I have used in many other houses. But the other houses, I used it in the lobby basically. But this time, I've used it in the TV lounge. That is a pendant lights, and I've used a neutral color palette like grays and blues. And the special part in that lounge is a double height window and the double height TV wall, which is the major part of the room. And we have used a very special tile over that wall, and we add some side cabinets to enhance its beauty. जैसे इस घर की डबल हाइट लॉबी है, और जब हम इसके डिसीजंस ले रहे थे तो आई मस्ट से कि मुझे मेरा ख्याल है ये मैजिक टच ऑफ अस्मा नबील, इसको मैं कहूँगा कि ये हमेशा वो एक सरप्राइज़ देती हैं। यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छी प्लेसमेंट और अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ इसको प्ले किया, और वाकई उन्होंने यहाँ सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि डबल हाइट लॉबी में ये आप देखेंगे कि मीडिया वॉल के ऊपर जो उन्होंने वो प्लेस किए एक्सेसरीज़ और रैक्स की डिज़ाइंस और उसके कॉम्बिनेशन स्टाइल के, तो बड़ा अच्छा उसको प्ले किया गया कलर कॉम्बिनेशन के साथ। In ground floor master bedroom, I have used grays and blues in that room, but I have added some olive green cushions in that to enhance the color combination. For this house, I have designed bed linens specially for the house theme, and you can see the curtains. I always use two-tone curtains in all my houses. In master bedroom, I have used grey walls with the grey tile on the feature wall, and some hanging lights in that room. वुडन फ्लोर की सिलेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वुडन फ्लोर की जो कलर टोन्स होती हैं उनमें परफेक्ट टोन को सिलेक्ट करना ये एक अहम चीज़ होती है, वरना तो मतलब मार्केट में तो एक बहुत बड़ी रेंज पड़ी होती है वुडन फ्लोर्स की, तो ये इसका बड़ा रोल होता है क्योंकि वुडन फ्लोर्स के ऊपर आपका जो फर्नीचर आएगा उसकी प्लेसमेंट के साथ उसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। In this whole house, my favorite bedroom is the front bed, in which I have used off-white and pistachio green color, which is very cool color combination, and that turned out a beautiful room, especially its bedding, its furniture, everything. मैं समझता हूँ कि ये जो एक सिलेक्शन और ये एस्थेटिक्स जो है ना,
ये अल्लाह ताला ने बस ये गॉड गिफ्टेड होती है, ये हर किसी के पास नहीं होती। तो ये अल्लाह ताला जिन लोगों को चुनता है ये उनके पास, जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, तो ये एक आर्टिस्ट ही होता है बेसिकली, जो इंटीरियर कर रहा होता है वो एक आर्टिस्ट होता है। जैसे एक पेंटर जो है वो पेंटिंग को पेंट करता है, तो वो हर कोई पेंट नहीं कर सकता, हर कोई आर्टिस्ट नहीं हो सकता। तो इसी तरह जो आपके जैसे डेकोर आइटम्स हैं, तो इनकी सिलेक्शन भी एक आर्ट है। आपने किस कलर कॉम्बिनेशन में एक वॉज जो है वो कहाँ रखना है, आपने उसको कहाँ प्लेस करना है, और उसकी बैकग्राउंड में जहाँ आप वो रख रहे हैं तो वो वहाँ कितना अच्छा लगेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। In first floor master bedroom, I have used beiges with the rust color combination, but again it's in the neutral color palette. Walls are all in beiges, and I have used texture paint on the walls, not so heavy wall treatments. और इसमें प्लेसमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट की हैं। बेड के आगे हमने सोफ़ा प्लेस किया है क्योंकि रूम की जो था डायमेंशंस थी उसके अकॉर्डिंगली हमें सिटिंग भी चाहिए थी रूम में, और हम रूम को बहुत टाइट इफेक्ट भी नहीं देना चाहते थे। तो फॉर दैट रीज़न आई प्लेस सोफ़ा इन फ्रंट ऑफ द बेड, और वॉल ट्रीटमेंट किया है अगेन विद द वेरी सिंपल AGT शीट्स एंड सम टेक्सचर्ड पेंट। बेसमेंट में एक ऑफिस कम स्टडी डिज़ाइन किया है, जिसकी वॉल्स को हमने वॉलपेपर के साथ ट्रीट किया है विद माय वेरी फेवरेट वॉल मास्टर ग्रास क्लॉथ वॉलपेपर्स। और उसके अंदर हमने जो मेरा बहुत ही फेवरेट एक है टोबैको, वो मैंने यूज़ किया है। और उसके साथ फर्नीचर भी हमने सेम टोन में ही यूज़ किया है। हमारी जो वुड की जो कैबिनेट्स हैं दैट इज़ ऑल्सो इन द सेम कलर टोन। तो थोड़ा उसमें डिफरेंट ये है कि हमने वन कलर के साथ प्ले किया पूरे रूम में। जब हमने स्टार्ट लिया था तो हमारे फर्नीचर डिज़ाइंस जो थे वो फाइनल हो चुके थे, बट जैसे जैसे इसकी स्टेज हम करीब आती गई कंप्लीशन की, तो हमने बिल्कुल सारे डिज़ाइंस में अपने डिसीजंस को बदल दिया, और जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे थे और जो लेटेस्ट डिज़ाइंस थे हमने उसको फॉलो किया। हमने ये बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल छोड़ दिया कि मतलब जो पहले हमारा डिसाइडेड था वो ये था, हमें ये करना चाहिए, नहीं, हमने उसके अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन किया। इवन फर्नीचर की फिनिशेस, इवन फर्नीचर के उसके डिज़ाइंस, उसके फैब्रिक्स, उसके कॉम्बिनेशन, सब कुछ बदल दिया हमने। बेसमेंट में एक बेडरूम है जिसमें हमने ग्रेज एंड प्लम कलर को यूज़ किया है, और उसमें जो बेड है हमारा वो बहुत डिफरेंट डिज़ाइन का है, जिसमें हमने लेदर और जूट को यूज़ किया है, और इट्स अनदर वेरी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन। बेसमेंट के अकॉर्डिंगली उसको हमने प्लान किया था कलर कॉम्बिनेशन को, और थोड़ा सा रूम साइज़ में छोटा था, बट कोशिश की है कि उसमें ऐसा फर्नीचर हम यूज़ करें कि वो हमारी यूटिलिटी भी पूरी करे और रूम का साइज़ भी हमें स्पेशियस लगे।
आई थिंक आपको ये घर ज़रूर विज़िट करना चाहिए। हम आपके फ़ीडबैक के मुंतज़र रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप विज़िट करने के बाद हमें अपने कमेंट्स देंगे। जैसा कि आप हमारा पूरा घर विज़िट कर चुके हैं, डू गिव अस योर फीडबैक बिकॉज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ताकि हम अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में जो चेंजेस आप समझते हैं होनी चाहिए उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें।